الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم نے اب تک سنت کے بارے میں جو بحث کی ہے اس میں بنیادی چیز جسے سامنے رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تک ہمارے ہاں لوگ یہ لفظ تو بولتے تھے کہ قرآن و سنت، لیکن سنت کے واقع ہے کیا؟ میں نے جو حقیق سے خدمت انجام دی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایک بالکل متعین فہرست سامنے ہے، اور اس بحث سے یہ بالکل اندازہ ہو گیا کہ کم سے کم اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور اختلاف کا دائرہ بہت محدود ہے. یعنی 2-3 چیزیں ہیں جن کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی بحث تو ہی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے متن کے متعلق بھی بہت سے لوگ اخبار احاد کی بنیاد پر قرأتوں کو اس بات کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمارے پاس واضح اور متعین صورت میں موجود ہے. اسی طریقے سے سنت بھی بالکل سامنے آ جاتی ہے. دوسری جو تھوڑی بہت خدمت انجام پائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ سارے ذخیرے میں لفظ سنت کا اطلاق کرنے کے لیے کن اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے. دین کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو دین قرار دینے کا مطلب کیا ہے. یہ جو ہم نے ابھی داڑھی پر بھی بحث کی ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس میں اصل مسئلہ یہی ہے. یعنی داڑھی مسلمانوں میں رائج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے، صالحین رکھتے رہے ہیں. یہ موضوع بحث نہیں. موضوع بحث یہ ہے کہ کیا اس بات پر اجماع ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی حیثیت دی اور دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ نہ صرف کہ روایات سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی، صحابہ کرام کے اجماع کی کوئی شہادت نہیں ملتی، بلکہ ہمارے پاس تو اس معاملے میں ائمہ اربعہ کی بھی کوئی چیز موجود نہیں کہ جس کو ہم قطعیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو بجائے اس کے کہ اس جگہ پر رکھا جائے، وہیں رکھنا چاہیے جہاں حضور کی، انبیاء کی، صالحین کی پسندیدہ چیزیں رکھی جاتی ہیں. کوئی آدمی اگر یوں بیان کرے کہ بیٹھ کر کھانا کھانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، یا یہ بیان کرے کہ حضور نے ان لوگوں کو کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ تم نے کہا مسجد میں کر لیا، یا مثال کے طور پر یہ کہے کہ اگر کسی آدمی نے شادی کی ہے تو یہ بڑی نامعقول سی چیز ہے کہ اپنے چند دوستوں کو کوئی بکری ذبح کر کے کھانا نہیں کھلایا، اللہ یہ کوئی مجبوری، یہ حضور نے پسند کیا ہے، اس کی ترغیب دی. یہ سب باتیں بالکل ٹھیک، یعنی ان کو اسی حیثیت سے پیش بھی کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین اور شریعت بنا دیا ہے. یہ چیز ایسی آسان نہیں ہوتی. لوگوں کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو بیان کرتے وقت بہت معمولی چیزوں کے اوپر انحصار کر دیتے ہیں. یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ بات کا موقع کیا ہے، محل کیا ہے، کہاں بیان ہوئی ہے، کیا حیثیت ہے اس کی. دین اور شریعت کی حیثیت جن چیزوں کو انبیاء نے دی ہے وہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. ان کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کو انبیاء علیہ السلام نے، صالحین نے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے. اور پسندیدہ چیزوں میں بھی میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ یہ فرق ہم ملحوظ رکھیں گے کہ اگر تو وہ پسندیدہ چیز کوئی تمدن سے متعلق ہے تو اس کو مسئلہ نہیں بنائیں گے. وہ پسندیدہ چیز کسی اخلاقی یا فطری چیز سے متعلق ہے تو لوگوں کو اس کی ترغیب دیں گے، یہ کہیں گے کہ حضور نے اس بات کو پسند کیا. یعنی اگر یہ بات بیان ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر تلوار سے لڑائی کی ہے تو یہ ترغیب دینے کی چیز نہیں ہے. لیکن اگر یہ بات ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً داڑھی رکھنا پسند کیا ہے، یا یہ کہ حضور نے ولیمہ کرنا پسند کیا ہے، یا حضور نے مسجد میں نکاح کرنا پسند کیا ہے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا انبیاء کی پسندیدہ چیزوں کی حیثیت سے پیش کرنے میں کوئی معنی نہیں. پیش کرنا چاہیے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ان کو دین اور شریعت کی حیثیت دے دینا یا سنت کا لفظ ان پر بول دینا. یعنی میں جب سنت کا لفظ بولتا ہوں، اصل میں سنت کا لفظ ہمارے ہاں پسندیدہ چیزوں کے بارے میں بول دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز دین ہے، یہ چیز شریعت ہے، یہ دین میں بحیثیت دین شامل کر دی گئی. اس کے بارے میں اب یہ طے کرنا ہے کہ یہ کس درجے میں لازم ہے، یعنی وہاں مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے. تو میری ساری جو بحث ہے اس معاملے میں وہ صرف اس حد تک ہے. یعنی ان میں سے کسی چیز کا بھی میں مخالف نہیں ہوں، سوائے اس ایک چیز کے میں نے عرض کر دیا، کیونکہ اس کو اگر مان لیا جائے عشرہ ذو الحج کے معاملے میں تو پھر یہ ماننا پڑتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دینی حکم کو صحیح طریقے سے پہنچایا نہیں. یعنی یہ بات کہ حضور نے کسی موقع کے اوپر رات کی نماز پڑھی، اس کو حضور کی کوئی ایک زوجہ محترمہ بیان کر دے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ یہ معاملہ ہم سے متعلق ہی نہیں ہے. اس میں حضور کا ایک عمل بیان ہو رہا ہے، یا کوئی ایسی بات
کہ جس کے لیے بنیاد تو قرآن و سنت میں موجود ہے اور حضور نے اس کی کوئی فرع بیان کی ہے یا اس کا کوئی اطلاق کیا ہے، اس کو کوئی ایک بھی شخص بیان کر دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بچہ بھی بیان کر دے ٹھیک ہے، لیکن دین میں ایک مستقل حکم کی حیثیت سے یعنی یہ جو چیز ہے اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا کسی چیز پر، اس کو شامل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سارا کا سارا مواد اس کے حق میں کھڑا ہو۔ یعنی جب اجماع کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مسلمانوں میں عمومی اتفاق پایا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ چیز دین کی حیثیت سے نسلاً بعد نسلاً زیر بحث ہے اور یہاں سے لے کے اوپر تک اسی حیثیت سے اس کے بارے میں اتفاق بیان کیا جا رہا ہے، تب وہ یہ حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جتنی چیزیں بھی آپ لوگوں نے بیان کی ہیں بہت اچھا ہے، تو سامنے آ گئی ہیں۔ کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے، پانی پیتے وقت یعنی خامخواہ کھڑے ہونے کی وجہ آپ کے پاس جگہ ہے بیٹھ کے پینا چاہیے آدمی کو۔ اسی طرح رفع حاجت کے معاملے میں مہذب طریقہ یہی ہے کہ بیٹھ کر رفع حاجت کی جائے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں اللہ کے پیغمبر بھی توجہ دلاتے ہیں، صالحین بھی توجہ دلاتے ہیں، لیکن اس سارے مواد کو سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ معاملہ توجہ دلانے کا ہے، ایک اچھی چیز کو بیان کرنے کا ہے یا اس کو دین قرار دے کے دین کی فہرست میں شامل کرنے کا ہے۔ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں اور ان چیزوں کو جب تک الگ الگ نہیں سمجھا جاتا اس وقت تک دین کے معاملے میں آپ ایک واضح جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں نے اگر کچھ ایک خطیر خدمت انجام دی ہے 10-15 سال کی محنت سے، تو وہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک بالکل متعین فہرست سامنے رکھتی ہے کہ یہ سنت یعنی قرآن جو ہے آپ کے پاس اور قرآن کے احکام بھی واضح ہے، ان میں بھی بحث تو ہوتی رہتی ہے کسی حکم کے بارے میں، کس کی نوعیت کیا ہے، یہ فرض ہے یا یہ مستحب ہے، لیکن یہ کہ سنت کیا ہے عام طور پر اس چیز کے بارے میں ایک ابہام کی کیفیت تھی، متعین کرتی ہے کہ یہ چیز ہے جس کے بارے میں اجماع ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو نسل بعد نسل دین کی حیثیت سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک کوئی شخص ان سے اختلاف نہیں کرتا۔ یہ بتا دیا آپ کو کہ یہ 2-3 چیزیں ہیں جن کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ کوئی صاحب اس فہرست میں ان تینوں چیزوں کو شامل کرے، ان کے خیال کے مطابق اگر یہ فہرست جو ہے اس میں یہ 3 چیزیں شمولیت کا درجہ رکھتے ہیں ان کو شامل کر لیں، لیکن اس کے بعد بھی ایک متعین شکل تو سامنے آ جائے گی، یہ چیز ہے جس کو سنت کہنا چاہیے، جس کو دین کہنا چاہیے۔ تو میں نے اپنا یہ نقطہ نظر واضح کر دیا، یعنی اس میں یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے عقیقے کے بارے میں کہا کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، نہیں عقیقہ مجھ کو پسند ہے، میں نے خود اپنے بچوں کا بھی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی وہ قربانی کے حکم کی ایک فرع ہے یا کوئی مستقل حکم ہے؟ تو میں نے عرض کر دیا کہ خود حضور نے سوال کے جواب میں یہ بتا دیا کہ وہ قربانی کے حکم کی ایک فرع ہے، یعنی ایک چیز دین میں پہلے سے موجود ہے، اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی پھیلا دیا۔ یعنی لوگوں نے پوچھا تو آپ نے اس کا بڑا سادہ جواب دیا کہ بھائی اگر کوئی آدمی اپنے بچے کی پیدائش پر قربانی کرنا چاہتا ہے تو ضرور ہے، بڑی اچھی بات۔ یعنی یہ بالکل الگ اسلوب ہے، اور یہ کہنا کہ یہ چیز جو ہے اس کو دین شریعت کی حیثیت حاصل ہے۔ اب مثلا دیکھیے نا کہ ہماری جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، اس کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ جب کسی چیز کو دین قرار دیتے ہیں تو کیا یہی طریقہ ہوتا ہے؟ یعنی حضور کہتے ہیں کہ جس نے یہ کام نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور کہتے ہیں ہماری عیدگاہ میں نہ آیا۔ کوئی آدمی نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر لیتا ہے، فرماتے دوبارہ کرو، وہ کہتے ہیں میرے پاس تو 6 ماہ کا ایک بکرا ہے، تو حضور فرماتے ہیں وہی کر دو، قربانی نہیں ہوئی۔ یعنی جب کسی چیز کو دین بنایا جاتا ہے تو یہ اہتمام ہے جو وجود میں آ جاتا ہے، اور پھر ایسا نہیں کہ یہ اہتمام محض روایات کے اندر ہوتا ہے، یہ اہتمام پھر منتقل ہوتا ہے پوری طرح امت کے اندر۔ تو اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے، حضور کو کیا چیزیں پسند تھیں، اور ان میں بھی اصرار کرنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ وہ چیزیں جو اپنی کوئی اخلاقی یا دینی نوعیت نہیں رکھتی وہ زیر بحث نہیں آنی چاہیے، امامہ زیر بحث نہیں آنا چاہیے، تہمت زیر بحث نہیں آنی چاہیے، تلوار کی جنگ زیر بحث نہیں آنی چاہیے۔ یہ چیزیں تمدن سے تعلق رکھتی ہیں، کوئی اخلاقی چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دین کے کسی حکم کی آگے کوئی وضاحت ہے یا کوئی اور چیز ہے اور وہ پسندیدہ آپ نے فرمائی ہے، تو بس اس کو اسی حیثیت سے پیش کر دیجیے۔ یہ پسند تھی تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ داڑھی کے بارے میں میرے لیے تو اتنا ہی بہت کافی ہے کہ حضور داڑھی رکھتے تھے اور آپ نے اس کو پسند فرمایا، بس ٹھیک۔ لیکن یہ کہ اس کو دین اور شریعت کے احکام میں درج کیا جائے، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کو دین اور شریعت کے احکام میں تو محدثین نے اس طرح درج نہیں کیا۔ آپ حدیث کی کتابیں کھولیں گے تو بالکل دوسری تصویر سامنے آئے گی، یعنی وہ لباس کی جو روایتیں نقل کرتے ہیں ان کے اندر اس کو
اور ابو داؤد نے تو یہ حد کی ہے کہ جہاں یہ روایتیں درج کی ہیں وہاں باب مونچھیں کاٹنے کا باب ہے، داڑھی کا باب نہیں تھا. یعنی وہ اس معاملے میں بتانا چاہتے ہیں اس بات کو کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. تو اس مسئلے کو بہت اچھی طرح اس کی صحیح جگہ پر رکھ لیجیے کہ دین اور شریعت کیا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اور حضور کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. اب اگر کوئی مزید چیز رہ گئی ہے، کیونکہ یہ باب بہت اہم ہے، سنت کا باب بہت اہم ہے، حدیث کے معاملے میں اس کی تعین کے بعد انشاءاللہ کوئی بڑی مشکل پیش نہیں آئے گی. زیادہ اہم بات یہ ہے کیونکہ اس میں ہم دین کے ایک حصے کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں باتیں آپ بیان کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ایصال ثواب کے بارے میں پوچھا، تو بہت سی چیزیں ہوں گی کہ جو آپ نے سنی ہوگی، تو ان پر بھی گفتگو ہو جائے تاکہ بالکل ذہن اس معاملے میں واضح ہو جائے. میں نے عرض کیا ہے ایصال ثواب میں یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ رسول اللہ نے ایصال ثواب کو بطور سنت کے جاری کیا تو اس میں بحث کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ ایک فقہی بحث ہے، اس کے بارے میں آدمی اپنا نقطہ نظر قائم کر سکتا ہے. سر تبلیغ کے بارے میں کیا حیثیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تبلیغ کا تو دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک پورا قانون بیان کر دیا ہے، وہ قرآن میں زیر بحث ہے. لیکن سر یہ جتنے نوجوان لڑکے ہیں جن کو یہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ آپ آئیں، آپ کے لیے فریضہ ہے یا یہ سنت ہے یا یہ طریقہ ہے، سر اس کے بارے میں وہ ہمارے ہاں ایک پورا باب آئے گا دعوت تبلیغ کا، تو اس میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن یہ کہ یہ جو دعوت اور تبلیغ کا معاملہ، اس میں یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کوئی سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو قرآن میں بڑی تفصیل سے ہے اور اس کے احکام میں پڑھنے میں، تو وہ ہم زیر بحث لائیں. یہ جو داڑھی یا بیٹھ کے کھانا پینا، اس کو کیا ہم مذہبی تہذیب کا حصہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو انبیاء علیہ السلام نے تہذیبی روایات چھوڑی ہیں. یہ بھی میں یہاں واضح کر دوں کہ تہذیب کیسے بنتی ہے. یعنی اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کے پاس کچھ اخلاقی اقدار ہیں، ان اخلاقی اقدار کو وہ رسوم کی صورت دے دیتے ہیں، ان کا عمومی زندگی پہ اطلاق کرتے ہیں. وہ ایک آب و ہوا میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے لحاظ سے کچھ رسوم پیدا ہو جاتے ہیں. ان کا ایک جغرافیہ ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے کچھ رسوم پیدا ہو جاتی ہیں. ان کے ہاں کچھ پیشے ہوتے ہیں، ان کے لحاظ سے رسوم پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو تہذیبی روایات ہوتی ہیں، ان میں جو چیزیں اخلاقی روایات سے متعلق ہے یا اخلاقی اقدار پر مبنی ہیں، وہ چیزیں کسی قوم کی تہذیب کا اصل حسن ہوتی ہے. تو ہم مسلمان کیونکہ بنیادی طور پر اخلاقی اقدار سے اپنے لیے الہام اخذ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو الہام ہمارے اندر کیا ہے اخلاقی اقدار کا، اسی کو ہم بنیاد بناتے ہیں تمام چیزوں کی. اس وجہ سے جتنی چیزیں اخلاقی اقدار پر مبنی ہیں وہ ہم مسلمانوں کی تہذیب ہے. یعنی جب ہم کہیں گے کہ مسلمانوں کی تہذیب ہے، تو مسلمانوں کی تہذیب کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ مراکش کے لوگوں کے یہاں شادی بیاہ کا ایک طریقہ ہے، ہندوستان کے لوگوں کے یہاں شادی بیاہ کا ایک طریقہ ہے، ان کے یہاں کچھ تہوار ہیں، ہمارے یہاں کچھ تہوار ہیں. تو یہ چیزیں تو اصل میں ماحول سے، معاشرت سے، آب و ہوا سے، پیشوں سے، یا جو کچھ بھی آپ کا پس منظر ہے اس سے پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو مثلا انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے اندر ایک تہذیب کی حیثیت سے، روایت کی حیثیت سے چلی آ رہی ہے، یہ اخلاقی اقدار پر مبنی ہوتی ہے اور انہی کو دوام ہوتا ہے. تو وہ چیزیں جو ہے وہ آسانی سے چھوڑ دینی چاہیے. لیکن انبیاء ان میں سے کس چیز کو شریعت بنا گئے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. اور کس چیز کو تہذیبی کے دائرے میں انہوں نے لینے دیا. تہذیبی دائرے میں بھی بعض چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں اور ان کو وہ اہمیت دینی چاہیے، لیکن ان کو دین اور شریعت بنا. سر یہ نان ریلیجنز ہیں، ان میں اس وقت جو پائے جاتے ہیں ابراہمک ریلیجن، ان میں کرسچینٹی ایسا مذہب ہے جس نے کہ بالکل چھوڑ دی شریعت، لیکن یہ داڑھی اور مونچھیں تراشنا جو ہے اس کا بھی ایک مستقل جز ہے. یہ یعنی اس صورت میں جہاں ہم اس کو ایک تہذیبی چیز کہتے ہیں، تو پھر اس کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ تہذیبی چیز جو ہوتی ہے؟ یعنی یہ پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو پسندیدہ استحباب کے درجے میں رکھنا چاہیے. میں آپ سے عرض کروں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو تیسری چوتھی صدی میں علماء نے داڑھی کے بارے میں گفتگو کرنی شروع کی ہے، تو وہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ یہ ناپسندیدہ ہے کہ آدمی داڑھی بنائے. یوں کرو امام غزالی نے بھی یہ کہا، زیادہ کچھ نہیں کہتے. ایسی چیزوں کو ترک کرنا ایک ناپسندیدہ بات ہوتی ہے اور ان کی ترغیب دینا پسندیدہ بات ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. سوال ہے جی ساتویں پرنسپل کے بارے میں، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ سنت کا جو ثبوت ہے وہ قبر واحد سے نہیں ہوتا، وہ مستقل ذات چیز ہے اور تواتر اجماع سے. یہ پوری بات جو ہے بالکل ابتدا میں بحث ہوئی جہاں پہ آپ نے سنت کو ڈیفائن کیا ہے، وہاں پہ یہ عنوان موجود ہے کہ سنت کس کو کہتی ہے. تو اس کو الگ سے بیان کرنا جو ہے، جبکہ وہ خود اس کی ڈیفینیشن میں آ گیا ہے،
इसकी क्या वजह है? नहीं, वहाँ ये डेफिनेशन में नहीं आया, वहाँ ये बयान हुआ कि सुन्नत हमें किस जरिए से मिलेगी। हाँ जी। यहाँ बतौर उसूल उसको बयान किया गया कि खबर वाहिद से ना कुरान लेना चाहिए ना सुन्नत लेना यानी जो रसूल ने बात बयान नहीं करी उसी का एक लिहाज से चाहिए। दूसरे पहलू से बयान की गई। यहाँ वो एक प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी चीज़ को दीन करार देने जा रहे हैं, सुन्नत करार देने का मतलब है दीन और शरीयत बनाना, तो दीन और शरीयत के मामले में अगर सहाबाए किरामी का इजमा नहीं हो सका तो फिर सोचिए ना थोड़ी देर के लिए क्या मसला हुआ। यानी अगर एक चीज़ को रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ही ने भी इजमा पेश नहीं किया, चुनांचे आप देखिए कि हमने ये जो रिवायत है अशरा ज़ुल्हज की, इस पर बुनियादी तनकीद ये की है ना, उस पर ये तनकीद की जा सकती है दीन तो वो है, यानी एक दीनी चीज़ है तो अच्छा, और मुस्तकिल बिज़ात चीज़ बन जाती है, तो बातों को ज़ाहिर वही इजमा पूरी नहीं कर, तो उसको उसूल में बयान करना चाहिए। यानी एक चीज़ जो है उस पर हम यही बहस की है कि भाई ऐसी चीज़ है कि अगर ये दीन थी तो फिर इसको बिल्मा नकल होना चाहिए। यानी ये मामला अखबार या हाथ पर छोड़ा ही नहीं जा सकता दीन को बयान करने का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक शख्स को या दो अशखास को बात बता दें और फिर उस पर छोड़ दें कि वो आगे बताए या ना बताए। अखबार या हाथ ये होती हैं, हम बहस करेंगे तो इस पर दीन कैसे जोड़ा जा सकता है। कुरान मजीद भी बिल-इजमा नकल हुआ है, सुन्नत भी बिल-इजमा नकल हुआ है, तो ये बतौर एक प्रिंसिपल के ज़ेर बहस आना चाहिए। इस प्रिंसिपल की अदम में अदम मौजूदगी में जो इसको जिस तरह से आपने सबूत के दायरे में बयान किया, क्या ये उससे बात पूरी नहीं रहती? वो राय हो सकती है इस मामले में, कोई आदमी ये राय रख सकता है। मेरे नज़दीक इसको उसूल में बयान होना चाहिए। उसकी वजह ये कि मैं तो इसका इतलाक कर रहा हूँ एक रवायत के ऊपर, वहाँ तो मैंने बयान वाक़या के तौर पर जिक्र किया, सुन्नत इजमा से मिली है, ना कि ये कहा कि सुन्नत इजमा से मिलना लाजिम है। वहाँ बयान वाक़या है। तहबंद का टखनों के ऊपर रखना, इसके बारे में बड़ी अहादीस नकल हुई है, उसको कहाँ हम प्लेस करेंगे? वो तो खुद हदीस से वाज़ेह है कि वो इस अखलाकी उसूल की फरा है कि आदमी को मुतकब्बिराना लिबास नहीं पहनना चाहिए। तो चूँकि अरबों के यहाँ बाज़ वबाश लोग तहमत इस तरह बांधते थे कि उसके लड़ छोड़े हुए हैं और बिसटती हुई आ रही है और सीना भी खोला हुआ है, कुर्ते के बारे में भी ये बात है, अमामे के बारे में बात है, तो ये तीनों चीज़ें जो है बयान करवाई तो हुजूर ने इसको नापसंद ठीक है। ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये एक उसूल का इतलाक है। यानी जब ये कहा जाएगा कि तकब्बुर दीन में ममनू है तो तकब्बुर की जितनी हैतें होंगी उन पर अप्लाई किया जाएगा। मूँछों का बड़ा रखना भी तो तकब्बुर ही की अलामत है, तो वो अगर आ गया एक इसमें, और ये तहबंद का ना आना, तकसीर भी है और तकब्बुर भी, दोनों चीज़ें हैं उसमें। यानी अखलाकी पहलू भी है मूछें बड़ी रखने में, और उसके साथ ये भी है कि गलाजत हो में जाएगी तो इसलिए उनको तरशवा के रखना चाहिए, दोनों चीज़ें हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक मुस्तकिल दीनी हैसियत दी है, महज इतलाक नहीं किया बल्कि मुस्तकिल दीनी हैसियत। तो तहबंद का लटकना तो आज भी ममनू ही होना चाहिए। बिल्कुल ममनू, इसमें क्या शक है। यानी उस तरीके से तहमत लटकाना जो है वो ममनू होना चाहिए, लेकिन उस तरीके से, इसलिए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक का मामला उसी वक्त ज़ेर बहस आ गया था, तो हुजूर ने फरमाया कि माज़अल्लाह तुम कोई उन लोगों में से टेंशन काउंट करती ये हैत भी, अगर हैत वो बन रही है तो जाहिर है कि आदमी को रोकना चाहिए। तो ऐसे बेशुमार प्रिंसिपल्स हैं। मतलब इसराफ का उसूल है कि आपको अपने अखराजात में इसराफ नहीं करना चाहिए, तो इस उसूल को आप 1000 चीज़ों पे अप्लाई करेंगे, नुमाइश नहीं करनी चाहिए, 1000 चीज़ों पे अप्लाई करेंगे, इससे कोई नया दीन में शामिल होगा। कई लोग दाढ़ी को तकब्बुर के तौर पर रखते हैं, जिसको वाश लोग करते हैं, उनके अंदर से तकब्बुर खत्म कर देते हैं, दाढ़ी खत्म कर दें, दाढ़ी खत्म करने है, तकब्बुर खत्म नहीं होगा, तकब्बुर खत्म करने है, ठीक हो जाएगी, दीनी तकब्बुर खत्म हो जाएगा। अच्छा ये रफ़ाए यदैन के बारे में उसको मैंने छोड़ दिया इसलिए कि वो असल में नमाज के अहकाम की एक फरा है और उसको वहीं ज़ेर बहस किया। नमाज में ज़ाहिर है कि बहुत सी चीज़ें, इबादत का तो पूरा बाब हमने छेड़ा ही नहीं, नमाज है, हज उम्रा है, उसमें बहुत पैसे हैं, यानी उनके अंदर क्या चीज़ें दीन की हैसियत रखती हैं, किन चीज़ों में गलती हुई है, ये जब इबादत को पढ़ेंगे हम, अगर अल्लाह ने तौफीक दे भी तो मैं लिख ही नहीं सका उसका, तो इसको ज़ेर बहस लाएंगे। हज के दिनों में क्या हमें इस रवायत से उलट भी कोई रवायत मिलती हैं कि सहाबा ने नाखून कटवाए हों या बाल कटवाए हों? ये पहले तो इस सवाल को बिल्कुल दुरुस्त करें, यानी दीन के मामले में ये सवाल ही गलत है। दीन को मुस्बत दलील से साबित होना चाहिए।
सहाबा इकराम की कोई डायरेक्टिव मुरतब करने के लिए नहीं बैठा हुआ। जब वो दीन को मुस्बत तौर पर बयान करते हैं तो उनकी ज़ुबानों पर होता है, उनके अमल पर होता है, ज़ेर बहस होता है, नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। यानी अगर कोई आदमी आप में से असाइनमेंट कबूल करे कितने सहाबा ने दाढ़ी रखी हुई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने तो बहुत काम किया एक ज़माने में, यानी कुल 5 आदमियों के बारे में आपको ये बात करें, और वो भी ज़िम्नन ज़ेर बहस आ गई। तो ये कोई मसला होता है जब, तो तब ज़ेर बहस आता है। अब कोई आदमी है कि 5 के बारे में तो मिल गया जब रखी हुई थी, बाकियों के बारे में हम क्यास करते कि नहीं रखी हुई थी, तो ये बात ठीक नहीं। ऐसा हमारा टोपी पहनना भी एक बड़ी सुन्नत शुमार की जाए। वो तो अब आप यहाँ देखें अमल में खत्म हो चुकी है। ये भी तहजीब का हिस्सा, तहजीब का हिस्सा या वो अरब का जो कल्चर था कि वो सहरा, अरब में तो कोई बहुत टोपी कोई भी नहीं पहनता था। अरब में तो जो था कि किसी तकरीब वगैरह में लोग मामा बांध देते थे, वरना रुमाल आमतौर पर, या वो एक खास तरह का एकाल होता है उनका जो बांधे रखते हैं, वो बांधे रखते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका ताल्लुक तमद्दुन से होता है, वो तब्दील भी होती रहती हैं, उनमें तगय्युर भी आता रहता है। बहुत सी पता शाह वली अल्लाह के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि नमाज के लिए इसलिए ज़रूरी है कि लोग वालिद के सामने नहीं जाते टोपी पहने बगैर, बेअदबी समझते। ज़ाहिर अब ये भी एक आम चीज़ का इतलाक है ना जो उन्होंने किया, वरना तो देखिए अब बुखारी में दूसरी जगहों पर रवायतें मौजूद हैं, हुज़ूर ने फी सौबिन वाहिद नमाज पढ़ी, यानी एक चादर लपेट के नमाज पढ़ी, कुछ भी नहीं था, ना मामा था सर पे, ना आपने कोई तमक पाना, फी सौबिन वाहिद नमाज की बहुत सी बात है। सर इकबाल ने एक जगह पे कहा है कि वज़ा में तुम सारा हो तो तुम मद्दन में हो, किस चीज़ को उन्होंने पेश नज़र रख के ये बात कही है? ये तो अल्लामा इकबाल ही पूछने की जरूरत है। उस ज़माने में जो मुसलमान जो थे वो नसरानियों की या मसीहियों की बहुत नकल कर रहे थे, तो इस पर बहुत से लोगों को तवज्जो दिलाते थे। तहजीब खत्म हो रही थी, दूसरी तहजीब का गलबा हो रहा। वरना आप ये देखिए कि जो वज़ा कज़ा सहाबा किराम की थी वो वही थी जो मुशरिकीन अरब की। दाढ़ी मुराद लिया खुद उन्होंने रखी, ये दाढ़ी अगर उससे मुराद ली जाए तो खुद उन्होंने रखी। तो वज़ा कता के जो मामलात हैं ये तमद्दुन से, तहजीब से तब्दील होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। इन चीज़ों को दीन बनाकर खड़े हो जाना ये एक बड़ा हादसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप चीज़ों को उनकी जगह पर रखें, यानी क्या चीज़ शरीयत और दीन है वो मैंने आपसे अर्ज़ कर दी। सुन्नत के एतबार से ज़ाहिर कुरान में जो दीन बयान हुआ है वो आगे तेरे बहस आएगा, तो क्या चीज़ दीन और शरीयत है वो यही बयान होगी। अब उसके बाद ये रह गई बात के पसंदीदा चीज़ें हैं, कुछ तमद्दुनी चीज़ें हैं, उन पर गुफ्तगू हदीस के हवाले से होती रहेगी, और किसी चीज़ के पसंदीदा और नापसंदीदा होने में भी इसका लिहाज करना चाहिए कि वो चीज़ असल में किस तरह की होगी। अखलाकी बात है तो पसंदीदा अब भी होनी चाहिए, फितरी चीज़ है तो अब भी पसंदीदा होनी चाहिए, लेकिन अगर वो चीज़ तमद्दुन से मुतल्लिक है तो फिर उसको वही रह जाना चाहिए। उसको आगे बढ़ाएंगे आप तो आप दीन में बिदअतों को दाखिल करेंगे, खराबी। सर अगरचे ये सवाल शायद थोड़ा सा इस गुफ्तगू से डायरेक्टली रिलेटेड तो ना होगी, ताहम ये जो रिवायत आपने अबू उमामा बाजी की पढ़ी थी जिसमें जो उसूली स्टेटमेंट लग रही है उसकी दीन में क्या हैसियत है, यानी ये कि खालिफुल अहल किताब या खालिफुल मुशरिकीन, इसकी क्या हैसियत है? ये बात ये है कि उसमें दो पहलू हो सकते हैं। एक तो ये है कि उनके यहाँ ये चीज़ें दीनी एतबार से कोई हैसियत रखती है, यानी उन्होंने इनको दीन बना दिया हो, तो फिर तो ये बड़ी अहम बात है कि अगर किसी जगह किसी चीज़ को गलत तरीके से दीन बना दिया गया है तो लाजमन उसकी मुखालफत करके तोड़ देना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर लोगों ने गलत तरीके से टोपी पहनने को दीन बना दिया है तो उतारिए ना, ताकि ये हैसियत उसकी खत्म हो जाए। अगर तो ये सूरत हाल है तो ज़ाहिर है कि ऐसा होगा, और अगर सूरत हाल ये है कि वो ऐसी चीज़ें थी कि जिन चीज़ों के अंदर कोई खराबी पैदा हो गई, यानी उनके ऊपर इसरार से खराबी पैदा हो रही, जैसे मसलन इस बाल का मामला है, यानी एक आदमी ने अपनी तहमत लटकाई हुई है तो ये एक मुतकब्बिराना हैत बन गई, या किसी आदमी ने छोटी छोटी दाढ़ी करके मूंछें लंबी लंबी रखी हुई हैं तो ये एक नहायत ही नापसंदीदा हैत बन गई। अगर ये चीज़ है तो उसके लिहाज से होना चाहिए। तो वहाँ तो साफ ये मालूम होता है कि अहले किताब के यहाँ ये कुछ मजहबी लिहाज से पसंदीदा चीज़ें करार पा गई, यानी जिस तरह हमारे यहाँ भी ये सारी चीज़ें इस तरह हो गई। हमारे यहाँ लोग बाकायदा बहस करते हैं खिलाफ लगाने के बारे में, उसकी दीनी हैसियत क्या है क्या नहीं है, हालांकि आपने देखा कि वो कैसे ज़ेरे बहस आया, यानी शलवार पहनना या पैजामा पहनना या ये चीज़ें पहनना, लोगों का ख्याल ये है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम वक्त सिर्फ दीन बयान करते हैं,
यानी हुजूर जाहिर है कि दीन भी बयान करते थे, उसके साथ आम तमद्दुनी चीज़ों पर गुफ्तगू भी करते थे, कोई तबसरा भी करते थे, किसी को कोई मोहब्बत से बात भी कह देते थे, किसी को तवज्जो भी दिला देते थे, कहीं अपनी किसी आम पसंदीदा चीज़ को भी बयान कर देते थे, सब बयान करते थे। तो मुझे तो ये रुझान मेरा यही लगता है कि वहाँ गालिबन मजहबी पहलू है जिसको हुजूर ने मौजू बनाया, वरना खालिफ वाली किताब यानी मतलब ये क्या हम इस पर मामूर है कि अहले किताब जो करें उसकी हमने मुखालफत करनी, जबकि हमें ये मालूम है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये रवायतों में बयान हुआ है कि आपने अपने बाल बनाने का तरीका वो इख्तियार कर लिया था जो अहले किताब का, यानी आप पसंद करते थे इसको कि अहले किताब के तरीके में ज़्यादा से ज़्यादा तरीका, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हमसे पहले के मुसलमान हैं, उनके हमारे दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और कुरान के बाद कुछ इख्तलाफात पैदा हुए हैं, वरना वो मुसलमानों का एक फिरका है। सिर्फ कुर्बानी करना सुन्नत इब्राहिम है, मुशरिकीन जो चढ़ावे चाहते थे उन्होंने क्या ये सुन्नत इब्राहिम ही नहीं? ये बात है कि कुर्बानी करना एक इबादत है ना, इबादत एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आदमी अल्लाह के साथ अगर किसी को शरीक करेगा तो वहाँ करना शुरू कर देगा। तो कुर्बानी भी करनी शुरू कर दी उन्होंने, नमाज भी पढ़नी शुरू कर दी, सजदा भी करना। अब भी आप कभी जाएँ उन जगहों पर जहाँ लोग मुश्रिकाना अमाल अंजाम देते हैं तो वही इस तरह के सभी काम कर रहे होते हैं, बकरे भी ज़िबा हो रहे होते हैं, न्याज भी दी जा रही होती है और सजदे भी किए जा रहे होते हैं और दुआएं भी मांगी जा रही होती हैं। तो हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी कभी मुश्रिकाना अमाल वजूद में आते हैं तो जो अल्लाह ताला के लिए करने की चीज़ें वही उन लोगों के लिए या बुतों के लिए या थानों पर या अपनी अकीदत की जगहों पर लोग करना शुरू करते हैं। सर नमाज जो पढ़ाने वाला बंदा होता है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसने शलवार कमीज प्रॉपर पहनी हो, हालांकि पैंट शर्ट पहन के हम जस्ट ऑपोजिट करें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसको पसंद नहीं किया जाता है। उसकी वजह भी वो हमारा एक तहजीबी रवायत का पस मंज़र है और कोई चीज़ नहीं। ज़ाहिर है कि दुनिया भर में लिबास मुख्तलिफ होंगे, लोग अपने अपने तरीके के लिबास पहनेंगे। अब आप देखेंगे बाहर के बहुत से मुसलमान ममालिक में ये मसला ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ एक ख़ास लिबास को बड़ी अहमियत दी जाती है। हिंदुस्तान का कुछ मिजाज ऐसा है कि इसमें रसूम और ज़ाहिरी चीज़ें बड़ी अहमियत इख्तियार करती हैं, यानी इसको पढ़ने के बाद हिंदुस्तान की तारीख को ये मालूम होता है कुछ इसकी मिजाज में है, मेरी तामीर में मुज़मिर है एक सूरत खराबी, इसके अंदर हक़ाइक़ पर नज़र कम और इन चीज़ों पर लोगों का बहुत जोर होता है। इसके बिल्कुल बरखिलाफ आलम अरब में ये चीज़ नहीं है। यानी यहाँ तो आप ये देखिए कि किसी आदमी को ये बताना मुश्किल हो जाता है कि भाई इशा की नमाज 4 रकात है। अरब में कोई मुश्किल काम नहीं है, वहाँ पढ़ते ही लोग इतनी, यहाँ ये नामुमकिन है। मस्जिद में लिखा हुआ है 17 रकात। अच्छा, नमाज की किताब छापेंगे, आप देखें नमाज पर एक किताब छापी जाएगी, उलमा छापेंगे, लोगों को नमाज सिखाने के लिए छापी जाएगी और उसमें बाकायदा रब्बी जालनी मुकीमत सलात को ऐसे ही दर्ज किया जाएगा जैसे सूरह फातिहा दर्ज की जाए। हालांकि कोई हैसियत नहीं, वो दुआओं में से एक दुआ है, आप चाहे पढ़ लें चाहे ना पढ़ें। और ये मैं नहीं अर्ज कर रहा है, यही बात ठीक है। सूरह इखलास। अच्छा, सूरह इखलास का हाल तो ये है कि अगर आप किसी अपने पुराने बुजुर्ग को ये कहें कि आप सूरह फातिहा के बाद कुरान का कोई हिस्सा पढ़ें तो वो कहेंगे नहीं कुल वल्लाह। यानी उसका हाल तो ये हो गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि लोग नए नए मुसलमान हुए यहाँ पे, तो उलमा ने उनको एक मुख्तसर सा तरीका बता दिया कि भाई ये सूरह फातिहा याद कर लो, बड़ी छोटी सी सूरह कुल वल्लाह ये याद कर लो। अब हमारी जो नानियाँ दादियाँ थी वो तो कुल वल्लाह ही को समझती थी, यानी हराम के दर्जे में ये समझती थी कोई और सूरत पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ेंगे कुल वल्लाह पढ़े। बावर कराना मुश्किल था उनको, क्या कुरान मजीद का जो हिस्सा चाहे पढ़ सकते नहीं, कुल वल्लाह के बगैर नमाज कैसे हो सकती है। और हादिया कि देखें ना कैसी सहूलतें पैदा की इन लोगों ने, आप उनके जाविये से देखें तो अगरचे खराबी पैदा हो गई कि होगा अच्छा दुआए कुनूत तो नहीं याद होती, उनका 3 मरतबा कुल वल्लाह। तो उसमें भी बिल्कुल वही ज़हन बात करना कि लोगों के लिए एक आसान सी चीज़ को बनानी। तो जब दीन को उसकी असल में बयान किया जाता है तो जब चीज़ें लोगों में रवायत बनती है तो बड़ी अजनबी लगती है। और ये बात जो है ये हिंदुस्तान में यहाँ लोगों को बताना कि भाई आप कादे में बैठ गए तो आप बैठ के दुआ करें, जो जी चाहे दुआ करें, नमाज हो गई। नामुमकिन लोगों के लिए इसको पाबंद करना। हालांकि ये बात तो आप देखिएगा, मैं जब हदीस आपके सामने रखूंगा इबादत में तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, कोई इसमें दो राय नहीं हो सकती। तो यही मामला उन चीज़ों के बारे में, जैसे हमने दाढ़ी पर बहस की तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ ये कहा है कि भाई इसको इसकी पसंदीदा जगह पर रख दो, इससे ज़्यादा अहमियत ना दो, इसको इससे ज़्यादा अहमियत ना दो।
कादे में बैठते इस्लाम फिरा जा सकता है? पढ़ी जा सकती है। जी शॉर्ट्स बॉयज पहनते हैं ना, आदमी भी पहन के जाते हैं। देखिए बाउसूली बात यह है कि नमाज में एक महज़ब बावकार लिबास आदमी होता है। सर मेरा बेटा तो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा वो, अब तो उसने कहा मैंने जाना ही नहीं जब तक कि मुझे शलवार कमीज, मेरी सारी शलवार कमीजें बनवा दे। नहीं शलवार कमीज कोई ज़रूरी नहीं है, अच्छा महज़ब लिबास पहन लेना चाहिए। लेकिन पढ़ी तो जा सकती है। अल्लाह ताला के हुजूर में आप जा रहे हैं तो अल्लाह ताला के हुजूर में जाते हुए कुरान में भी ये कहा गया है कि आपको अच्छा ज़ीनत का लिबास पहन और स्लीव्स भी उनके फुल होने चाहिए। अच्छी बात, अच्छी बात, नमाज तो होने को हो ही जाएगी, लेकिन अच्छी बात यही है कि आप लिबास उम्दा पहने। कादे में बैठते ही आप इस्लाम फेर सकते हैं बगैर कोई चीज़ पढ़े? जी कर सकते हैं, जब उसमें कोई जिक्र लाजिम नहीं किया गया। सर जो दीन बनने के करीब बात पहुंच जाती है, आप कह रहे हैं कि उसको उससे जस्ट ऑपोजिट कर दें, जैसे कि टोपी के लिए आपने कहा कि इसको फिर उतार दें, तो सर अगर शलवार कमीज पहन के मस्त कर दिया है कि आपने करना है तो फिर आप कभी पैंट शर्ट पहन के क्यों नहीं हमें नमाज पढ़ते हुए नजर आए? मेरा मसला ये नहीं कि मैं नमाज पढ़ने के लिए शलवार कमीज पहनता हूँ, मैं आम लिबास के तौर पर सवाल बहुत अहम है। मैं तो आम लिबास के तौर पर शलवार कमीज पहनता हूँ। मेरा ये मसला नहीं है कि मैं नमाज पढ़ने के लिए शलवार कमीज पहनता हूँ, मेरा आम लिबास की। पैंट की वजाहत कर दें कि पैंट एक तो पैंट होती है वो जीन टाइप, उसमें तो वाकई नमाज की ऐसी बन जाती है, लेकिन ये शहजाद साहब की पैंट में नमाज सही जाती है जैसे पहनते हैं उसमें ये तो भाई इन्होंने कोई जाती मसला बना दिया, आप लोग बाहर तय कर ले जाए। पैंटों की भी अक़साम है ना, महज़ब शाइस्ता लिबास पहनना चाहिए, ऐसा लिबास पहनना चाहिए कि आदमी ये महसूस करे कि अल्लाह की बारगाह में रहा है, बस इतनी बात है। इस्लाम ने कोई इस मामले में लिबास नहीं मुकर्रर कर दिया कि आप शलवार पहने आप पजामा पहने, यानी इस्लाम का कोई लिबास नहीं है। आलमगीर दीन है, दुनिया भर में लोगों ने उसको कबूल करना है, कोई पतलून पहनेगा, कोई पजामा पहनेगा, और आप ये देखिए कि लोग पतलून पर इनको और जीन की पतलून में बहुत एतराज है। नहीं वो सतरपोशी के लिहाज से मैं सतरपोशी के लिहाज से गुफ्तगू कर रहा हूँ, तुम भी ना पजामे के बारे में क्या कर रहा है? सतरपोशी यानी उस पर बहुत बहस हो सकती है, क्या होता है कभी आप देखें किसी आदमी को, अच्छा ख्वातीन पहनती थी और घंटा घंटा लग जाता था दिल्ली की ख्वातीन को पजामे को पिंडलियों पर चढ़ाने में। जो लिबास के मामला आपको मैं अर्ज करूं कि मौलाना मौलवी साहब को पेशाब की तकलीफ बहुत रहती थी बेचारों को, तो एक बार तो ये हुआ कि उनको 36 घंटे उनके ऊपर गुजर गए और बड़ी तकलीफ में वो थे और उनको ले जाना था। मैं कुछ देर पहले उनके कमरे में उनसे मिला, उसमें ज़ाहिर है कि वो घर के लिबास में थे, तो ये फैसला हुआ कि उनको क्लिनिक में दाखिल कर दिया जाए, शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये क्या शक। उनसे गुजारिश की गई कि आप तशरीफ ले आए, तो वो जब तशरीफ लाए दूसरी जानिब से उन्होंने चूड़ीदार पाजामा पहना हुआ था और शेरवानी पहनी थी, टोपी, यानी तहजीबी रवायत को उन्होंने उस वक्त भी मलूज़ रखा। तो एक चीज़ है कि किसी सोसाइटी की तहजीब क्या है, उसकी वज़ादारी क्या है, बस इन चीज़ों को यहाँ रखना चाहिए। तो मैं तो अपनी वज़ादारी को निभा रहा हूँ, मैं कोई मजहबी मसला नहीं बनाता। तो हम आगे चल सकते हैं या अभी सुन्नत बाकी है? जो तज़किये के हवाले से उसके दो पहलू हैं, एक तो तकहीर का है और एक नशोनुमा देने का है नफ्स को। तो नशोनुमा देने के हवाले से ये जो इबादत है और इखलाकी तहजीबी जो चीज़ें हैं वो भी तो सारी तकहीर की चीज़ें होती हैं। जो दाढ़ी है बेसिकली उसी के अंदर भी आती है, नशोनुमा देने का पहलू है। कैसे? मतलब उसके ऊपर जब आप लग्जरीज है ना दीन की, आप उसकी मुस्तहसनियत में आती है। कैसे? इबादत तो समझ में आता है ना कि आदमी को अल्लाह के करीब करती हैं, उसके नफ्स को पाकीज़ा बनाती हैं, उसके अंदर खुदा की याद ताज़ा करती हैं, ये सारी चीज़ें करती हैं। ज़ाहिर में ज़ौक़ पैदा होता है दीन के हवाले से, इसलिए कि उसको एक दीनी चीज़ बनाया गया ना पहले यानी एक चीज़ है कि वो अपनी असल में दीनी चीज़ है। जैसे ही आप उसको करेंगे, मसलन जब आप अल्लाह को याद करेंगे, हिंदू करेगा तो उससे भी दीनी ज़ौक़ पैदा होता है उसके अंदर। लेकिन ये तो जब तक दीन समझ कर नहीं किया जाएगा कुछ चीज़ पैदा नहीं होती। आप इस फर्क को नहीं समझ पा रहे कि एक चीज़ वो है कि पहले उसे दीन बना दो तो आपको दीनी ज़ौक़ पैदा होगा। जैसे कुरान खानी से होता है जी, जैसे कुरान खानी से होता है, कुरान खानी से होता है, ऐसा होता है, जैसे मौलूद शरीफ से होता है। यानी पहले आपने लोग उसमें रो रहे होते हैं बाकायदा बैठे हुए,
मिलाद शरीफ जो है वो एक बड़ी गैर मामूली चीज़ है। अब उससे उन लोगों में जो उसको मान रहे होते हैं, दीनी ज़ौक़ भी पैदा होता है। वो कहते हैं, बल्कि हमारी बहन थी वो कहा करती है कि तुमने दीन की सारी रंगीनी खत्म कर दी है। मतलब क्या है कि मिलाद शरीफ खत्म हो गया, कोई शिवरात का हलवा खत्म हो गया। अब ये सारी चीज़ें जो है, जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि एक वो चीज़ है कि आप मुस्लिम गैर मुस्लिम के सामने रख दीजिए, यानी उसमें कुफ्र और ईमान का फर्क ना हो। जब आप कहते हैं कि भाई अल्लाह को याद करो, तो ये चीज़ एक काफिर भी करेगा तो वो चीज़ पैदा होनी चाहिए उसके। जब आप कहते हैं कि झूठ ना बोलो, तो इससे जो पाकीज़गी हासिल होती है वो मुझे भी हासिल होती है और एक ईसाई को भी हासिल होती है, एक यहूदी को भी हासिल होती है। ये चीज़ है जिसको असल दीन कहते हैं। एक वो चीज़ है कि आप पहले उसको एक ख़ास दीनी हैसियत देंगे, वो दीनी हैसियत दे देने के बाद तो जाहिर बात है कि मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे। वो तो आप देखिए कि टोपी का मामला जो है ये भी अब से कोई 40-50 साल पहले यही चीज़ पैदा करता था। मौलवी नज़ीर अहमद के दावलों में तो टोपी उतारने के बाद शैतान होता था। आप देखिए ना, वो मशहूर वाक़या है, इंशा खाना खाने के लिए बैठे, उन्होंने दौर पीछे से गाड़ी लगा के देखो मियाँ के शैतान जो है वैसे ही थोड़े मारता है। तो लोग घर में नंगे सर बड़ा नामाकुल समझते थे कि जगह जाना आना। एक चीज़ को पहले आप दीन बनाते हैं, इसके बाद जाहिर है कि वो दीनी ज़ौक़ की अलामत बन जाती है और नफ्सियात पर भी असरअंदाज होती है। मौलाना फरमाया करते थे जी दाढ़ी दीन का फैशन है, ये प्लेसिंग ठीक है? ये प्लेसिंग इस चीज़ की, यानी जिस तरीके से लोगों ने इसको लिया उसमें तो फैशन ही बन गई है, ठीक है, यानी जैसे लिया गया वो तो दीन का असल में नुमाइंदा बन गई है। हमारे यहाँ तो सूरत हाल ये है कि दीन में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये सानवी चीज़ें हैं, वो खास अहमियत है इनकी। हो गई तो हो गई, ना हुई तो ना से। जैसे मैंने एक मरतबा कहा ना, मेरी नशस्त के बाद उन्होंने कहा कि ख्वातीन को कहें कि वो इन आदाब की पैरवी करके हैं, तो मैंने कहा बाहर एक आदमी खड़ा करता हूँ, वो मर्दों के बारे में इम्तहान देगा कौन कौन आदमी नमाज पढ़ता है, कौन रोज़ा रखता है, उसके बाद आए यहाँ। दीन के मामले में हम दीन सिखाने बैठे हुए हैं, तो भाई कोई आदमी पहले दीन पर अमल करेगा तो फिर हमारे पास आएगा। दीन सीखने के लिए आया, आपसे दीन सिखाए, मर्द को भी सिखाए, औरत को भी सिखाए। वरना बाहर खड़ा करना चाहिए कि बेशुमार हुर्मतों का इर्तिकाब करने वाले लोग जो कोई बैंक में काम करता नाम करना है दीन सीखने के लिए। कोई आदमी रिश्वत देता है, पहले हल्फिया बयान दे बाहर खड़ा करके एक आदमी को, उसके बाद अंदर तस्वीर लाएंगे। दीन की एक मजलिस में तुम आ रहे हो तो रिश्वत देके तो नहीं आना चाहिए, मुमकिन है उसी वक्त लेके आ रहा हो। ये नहीं आ रहा। तो जो चीज़ मैं शायद वादे नहीं कर पा रहा हूँ ये है कि किसी चीज़ को जब आप कहते हैं ये तज़किया का जरिया बनती है, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इबादत जो है वो आदमी के नफ्स की खुदा की तरफ रग़बत का जरिया बनती है। नजर आ रहा है ना, उसके लिए मुझे या आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, वो काफिर मोमिन सब समझ सकता है। इसी तरह जो तत्हीर की चीज़ें हैं, पाकीज़गी की चीज़ें हैं, तो जब आप उसको बयान करते हैं तो वाज़ेह हो जाता है। तो ये उस कैटेगरी में अगर आ जाती तो फिर तो मैं इसको दीन में रखता, ये नहीं आ रही। सर ये टोपी बरसगीर में इस्लाम आने से पहले भी मौजूद थी? हमारे यहाँ जो हिंदू राजपूत थे वो पहले भी पगड़ी बांधते, पगड़ी हुआ करती थी। टोपी तो बहुत बाद में तरक्की याफ्ता कौमों ने इख्तियार की है, पहले तो पगड़ी बांधी जाती थी आमतौर पर। बादशाह भी पगड़ी बांधते, हमारे यहाँ पंजाब में भी लोग पगड़ी बांधते थे। बल्कि मेरे अपने बचपन में देहात में जितने बुजुर्ग लोग होते थे वो मलमल के कपड़े की पगड़ी बांधते थे। बाद लोग उसमें कुला रख के बांधते थे और बाद लोग कुला के बगैर बांधते थे, लेकिन आमतौर पर पगड़ी बांधते थे। आप में से भी जो लोग बुजुर्ग लोग हैं उनको मालूम होगा कि एक ज़माना ऐसा रहा आज से 40-50 साल पहले देहात में सब लोग पगड़ी बांधा करते थे। और पगड़ी की अक़साम थी, पंजाब की पगड़ी और थी, इसी तरह से सिंध के लोग और तरह की पगड़ी बांधते थे, सरहद के लोग और तरह की पगड़ी बांधते थे। मुख्तलिफ इलाकों में पगड़ी की भी अक़साम थी। ये तहजीबें हैं और तहजीब का हिस्सा होती हैं ये चीज़ें, इनको पसंद किया जाना चाहिए, इनकी वज़ादारी भी कायम करते हैं। अब ये है कि मौलाना मौलवी साहब को मैंने एक मरतबा अर्ज़ किया, मैंने कहा कि आप चूड़ीदार पजामा वही पहनते थे, इजरार करके उनका भाई मैं अपनी वज़ादारी कायम रखूँ, उसकी दिल्ली का लिबास होता है। इसके बरक्स हमारे मौलाना इस्लाही साहब ने तर्क कर दिया, पजामा भी उन्होंने तर्क कर दिया, यानी वो फिर यहाँ के लिबास में जो शलवार है वो पहनने लग गए। जबकि मौलाना मौलवी को मैंने कभी शलवार पहने नहीं दिया, या तो वो खुला पजामा पहनते थे
घर में पहनने का होता है, उसमें 2-3 आदमी आप आसानी से डाल सकते इसमें एक भी मुश्किल से नहीं, उसमें तो आदमी की अपनी पिंडी दाखिल नहीं होती। यानी मुझे तो हैरत होती थी कि असल में वही सूरत हाल थी कि ये टांग इसमें दाखिल की कैसे गई और अब हो गई तो निकाली कैसे जाए। अच्छा, उसी तरह का आप देखेंगे वो चूड़ीदार पजामा जो है उसमें और जो जुराब स्कर्ट पहन के मगरबी ख्वातीन पहनते हैं तो कोई खास फर्क नहीं है। देखिए आपने, यानी कोई फर्क नहीं है उनमें। चूड़ीदार पजामा भी वही काम कर रहा होता है जो वो कर रही होती, लेकिन वो हमें बड़ी अजनबी लगेगी और हम ये कहेंगे कि ये तो दीन शरीयत के अल्लाह की खिलाफ वर्जी हो गई। इसके ऊपर चूड़ीदार पजामे के ऊपर हम मुतमईन हो, क्योंकि हमारी अपनी तहजीब और सकाफत की चीज़ बाकायदा बटन लगे थे पीछे चढ़ाने के लिए और उसकी चूंटें भी खास तरीके से बनाई जाती। अब तो दिल्ली दिल्ली नहीं रही, कहाँ वो दिल्ली और कहाँ उसके लोग। कितना वक्त बाकी है? 9 मिनट। 9 मिनट में आप लोग क्या करना चाहते हैं? ये जो कुछ कर रहे हैं और क्या करना है? अगली दफा हम मुबादी हदीस शुरू करेंगे और उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 नशस्तों में ये तो आपने जो कहा जाता है कि आप जिस तरह भी इन्होंने सवाल किया था कि कादे में कुछ पढ़े बगैर भी आदमी सलाम देते, इस तरह की जो इतनी भी आपने मतलब वो अपनी सारी तहकीक के बाद कह दिया कि ये लाजमी नहीं है या वाजिब नहीं है, तो इससे जो आदमी पहले ही ना इनको याद करता है ना उसे याद करने की तरगीब हासिल करता है, तो वो जिस चीज़ की तरगीब देनी हो उसे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय खुद उनकी जगह पर खड़े होकर वाजिब कर दूँ। वाजिब ना कीजिए, मतलब एक जैसे हमारे आमतौर पर रिवाज है तो याद उन्होंने किया एक जाता है मनफी आसानी से उन्होंने एक मनफी सवाल पूछा है। इस वक्त हम दीन का इल्म सीख रहे हैं, इस वक्त मैं कोई वाज नहीं कर रहा हूँ ना तरगीब दे रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ मुतय्यन सवाल, तो सवाल को मुझे जवाब देना चाहिए कि अगर ऐसा कर दे आदमी तो नमाज में तो कर अहनाफ का मदद दिए। कादा दुआ के लिए है, आप उसमें दुआएं करें, कोई दुआ करनी लाजिम नहीं। मैं जुमे में था तो उसमें हकीम सैयद महमूद साहब सहारनपुरी साहब पिंडी में आपका टीवी पर प्रोग्राम आया था जिसमें आपने कहा था कि उर्दू में भी दुआ की जा सकती है। उन्होंने उस खुतबे में कहा था कि भाई आप सब लोग यहाँ बैठे हैं तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कभी कोई उर्दू में दुआ करे, तो हमने कहा नहीं। उन्होंने कहा वो एक सवाल अगर मैं उनकी जगह तो ये पूछता कि आप तसव्वुर कर सकते हैं अगर रब्बी जलने के अलावा भी दुआ पढ़े, तब भी जवाब यही मिलता। कभी किसी ने नहीं की तो उन्होंने कहा तो आप लोग सवाल किया था किसी ने इसी तरह उनसे आपको प्रोग्राम देख के, और क्या यानी वो यही कहना चाह रहे थे कि ऐसी बात से यानी वो रूह ख़त्म हो जाती है। मेरा तो ख्याल है कि अगर लोगों को ये मालूम हो कि वो नमाज में अपनी ज़ुबान में दुआएं कर सकते हैं तो वो ये काम कभी ना करें कि एक मंत्र की तरह नमाज पढ़ के उसके बाद दुआएं करें, और दुआ नमाज के अंदर करें, ज़्यादा दुआ करें, ज़्यादा अपने रब के करीब, ये तब्दीली आए करते लोग। अल्लाह ताला के पैगम्बर ने बहुत अच्छी तकसीम की है, यानी नमाज की उस हैत में अरबी को लाजिम किया है कि जो कैफियत मजमूई सामने आती है, और जो आपके और आपके रब का मामला है उसके बारे में कोई कानून साजी नहीं, उसको छोड़। अगर हुजूर ने उसके लिए कोई दुआ मुकर्रर कर दी होती तो वो तो ज़ाहिर अरबी में पड़ी जाती। जब आपने कोई दुआ मुकर्रर नहीं की और ये कह दिया कि ये दुआ के लिए, तो अब उसके बाद जो लोग ये कहते हैं कि उसमें अरबी में दुआ मांगना जरूरी है, दलील उनको देनी चाहिए। वही बात है कि दीन के मामले में जब कोई बात आप करते हैं तो उसकी दलील आपको सबूत में देनी चाहिए, ना कि एक चीज़ राइज हो गई आप कहते हैं कि नफी में दलील दो। भाई पहले आप राइज चीज़ का सबूत तो देना। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई आदमी आपसे पूछे कि अच्छा आप ये बताइए कि ईद मिलाद नबी बनाने के खिलाफ क्या दलील दो, यानी किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ कि ईद मिलाद नबी ने बनाओ है तो बता, किसी सहाबी ने नहीं कहा कि ईद मिलाद नबी ने बनाओ। एक आदमी एक चीज़ को दीन बना रहा है उसको बताना चाहिए किसी तरीके से। यानी उनसे कोई आदमी ये पूछता है कि ये बहुत अच्छी बात है, आप ये बता दीजिए कि ये कहाँ रसूलुल्लाह लाज़िम है, वो दुआ ही बता दीजिए कि जो आपने ये कहा कि लाजमन इस पर मांग लेना चाहिए। नहीं सर, सीधी सी बात है, कोई भी मुद्दा जब
इंसान अपनी ज़बान में बयान करता है वो किसी अच्छे तरीके से बयान कर सकता है। यही मामला दुआ का है। अगर आप अपनी ज़बान में अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं दुआ के मकाम को, मेरे नज़दीक बैठकर में बहुत अच्छा तरीका है। दुआ देखिए बात है कि सारे लोग जो है वो मतलब दुआएं याद नहीं कर सकते, उनको बहुत कुछ अल्लाह से मांगना होता है, और उसका जो नतीजा हमारे यहाँ निकला है वो ये है कि दुआ जिस जगह मांगी जानी चाहिए वहाँ दुआ मांगी नहीं जाती, और उसके बाद लंबी लंबी दुआएं यहाँ तक के तबलीगी जमात की इज्तिमा में एक बार तो मैं भी शरीक हो गया दुआ मांगने में, मालूम हुआ कि बाजू नहीं लगवाने चाहिए। बल्कि दिलचस्प बात ये कह जाती है कि लोगों को ये बावर कराना, लोग कहते हैं कि इस्तग़फ़ार करें, उनको बावर कराना मुश्किल होता है कि इस्तग़फ़ार का मतलब है आप खुद अपने दिल में गौर करें कि आपने दिल किया है और अपनी ज़बान में इस्तग़फ़ार करें, ये नहीं इस्तग़फ़ार। दुआएं जो है वो छोड़ दिया गया हमारे ऊपर, हम दुआएं अपने तौर पर करें, अपने रब से जो मांगना चाहते हैं जिस तरह चाहते हैं मांगे। नमाज की जो मजमूई है तो वो कायम हो गई। तो होता ये है कि जब लोगों के यहाँ पहले एक गलत चीज़ राइज होती है, मैंने आपसे कहा ना कि वो ये सवाल भी करते पूरे मजमे से कि आप बताइए, एक साहब ने ये कहा कि रब्बी जल्दी मुकीमत सलात की बजाय आप कोई और दुआ भी पढ़ सकते हैं, क्या कभी आप तसव्वुर कर सकते हैं? लोग कहते हैं जी बिल्कुल, हम तो जब से पैदा हुआ है रब्बी जल्दी मुकीमत सलात पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में यही सुनता है। इसमें जो हिस्सा आप फरमाते हैं कि अरबी में लाजिम है पढ़ना, उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरब माशरे में रहते थे और उन्हें अरबी में ही वो हिस्सा पढ़ना था, तो उसको भी आप लाजिम किस बेसिस पर कहते हैं? कुरान है, नहीं कुरान मजीद का मिसाल के तौर पर इंग्लिश जब ये कहा जाएगा कि कुरान पढ़ो तो कुरान ही पढ़ा जाएगा, नहीं अगर एक आदमी कुरान तो तर्जुमा नहीं है, लेकिन उसके अंदर से भी वही एस्पेक्ट पैदा होता है कि रूह खत्म हो जाएगी उसकी। ये बिल्कुल ठीक है। यानी उसका जो तरीका है वो ये है कि नमाज असल में दुआओं की चीज़ है, कुरान से आप वाकिफ़ कीजिए लोगों को, कुरान तो एक मुतय्यन चीज़ है, उससे आप वाकिफ़ करा सकते हैं, उसका मफ़हूम समझाइए, ये सारे काम कीजिए। दुआएं तो लोगों ने अपनी ज़रूरत के लिहाज से मांगनी है, वो ज़रूरत किसी ने लड़का मांगना हो, किसी ने शादी की दुआ करनी हो, किसी ने और काम करना हो, उस हैत को कुरान की हद तक कायम कर दिया गया ताकि मुसलमानों का एक इज्तिमाई वजूद जो है वो हर जगह मुश्तरक है, और अजान और नमाज के इस इश्तराक ने मुसलमानों को जुड़ा हुआ है, यानी कोई अजनबियत महसूस नहीं होती, आप जहाँ चाहे चले जाए, वो अस्कार जो है वो हुजूर ने मुकर्रर कर दी, बाकी चीज़ों के बारे में कोई। अगर ये जैसे हजरत ज़करिया के हवाले से आता है कि जब वो खड़े नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त उन्होंने एक दुआ की, अब वो दुआ जो थी यानी क्या इसका ये मतलब है कि पहले नमाज में कोई फिक्स अस्कार नहीं थे, जैसे आज हमारे क़याम में तो दुआ का मौका नहीं होता, हम लोग तो क़याम में दुआ नहीं करते, लेकिन क्या उस वक्त पहली जो नमाज थी उसमें क़याम में भी दुआ हुआ करती? हो सकता है ऐसा हो। हमारे यहाँ भी ये देखिए ना कि एक आदमी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम होता है कि पाकीज़ा कलमा उसने कह दिया, एक आदमी आया और उन्हें हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन की हुजूर बड़ी तस्वीर, और उसूल में भी ये बयान कर दिया कि ये नमाज जो है ये दुनिया की बातें करने की चीज़ नहीं है, अपने रब का जिक्र करो, हमद करो, दुआ करो। अच्छा, कुछ जगहों के ऊपर आपने दुआ करने से रोक दिया, मिसाल के तौर पर आपने रुकू में दुआ करने से रोक दिया, सजदे में लोगों ने पूछा आप लोग करो। अब हमारे यहाँ तो लोगों से पूछे कि सजदे में दुआ की जा सकती है, सुभान रब्बी या आला 3 मरतबा पढ़ना। लेकिन इसमें भी सल्ली फिल महराब से ये जरूरी तो नहीं कि वो खड़े होकर दुआ, वो कायम ही युसल्ली फिल, इसमें जो हुजूर शाम का जिक्र हुजूर का आता है ना, हुजूर तहज्जुद की नमाज में कुरान जब पढ़ते थे तो जहाँ जहन्नम का जिक्र आता है उससे पनाह मांगने लगते थे, तो क़याम में ज़ाहिर हो ज़ाहिर बात है। यानी हुजूर का कुरान पढ़ने का तरीका तो ये था कि हुजूर कुरान की आयत पढ़ते, उसमें कोई अजाब की आयत होती है, अल्लाह से पनाह मांगते उसी वक्त, और इसी तरीके से कोई तस्बीह की आयत होती, तस्बीह करना शुरू कर देते, यानी जिंदा नमाज की हैसियत से नमाज पढ़ते। सर अगर नमाज पढ़ते हुए दुनियावी ख्याल पे आ जाए तो औज़ बिल्लाह या ला हौल वला कुव्वत कहकर शैतान से, अगर आप बेतकल्लुफ़ कह देते हैं तो कोई रोक नहीं सकता आपको, ये असल में अल्लाह की पनाह मांगना है, ठीक। जैसे नवाफिल में यानी हुजूर की जो तहज्जुद की नमाज के बारे में आता है तो मालूम होता है कि अच्छा खासा मुकालमा अल्लाह के साथ क़याम में हो रहा होता है, यानी कुरान पढ़ा जा रहा है, आयतें दोहराई जा रही हैं, उनके ऊपर तवज़ हो रहा है, उनमें किसी जगह पनाह मांगी जा रही है, किसी जगह रहमत मांगी जा रही है, सब कुछ। जैसे छींक है नमाज में छींक, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बंदे की बन जाती है, इंस्टिंक्ट भी बन जाती है, फौरन कह देते हैं। मैं कई बार कह देता हूँ, वो मेरे मुंह से नहीं मतलब वही मैं कर रहा हूँ कि एक आदमी के मुंह से ये निकल गया कि हमदन कसीरन तय्यब मुबारकन, मैं फरिश्ते उसको लेने के लिए। जैसे नवाफिल असल में जब आप किसी चीज़ को रिचुअल बना देते हैं तो फिर उसमें मसाइल पैदा हो जाते हैं। आप कुरान पढ़ें जिंदा किताब के तौर पर पढ़ें, आप कुरान पढ़ने के दौरान में महसूस करते हैं कि आपको इस मौके पर अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, मांगिए, कोई रोकने वाला नहीं है। नमाज में
कुरान की तिलावत के दौरान जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मौजूद तो दुरूद भी पढ़ सकते हैं। क्या माने है? ये लिखा हुआ है जब हम पढ़ते हैं खुदा के हवाले से नमाज के जो रोका तो नहीं है इससे, छींक आने पे रोका तो नहीं है ना, किसी चीज़ से रोका नहीं। हाँ अलबत्ता इस चीज़ से रोका है कि दूसरों के साथ मुकाबला किया जाए, यानी दूसरे अस्सलाम वालेकुम कहे और आप वालेकुम सलाम के जवाब देने इससे अल्हम्दुलिल्लाह कहते तो आप ये नहीं करना चाहिए। आप दूसरे की तरफ मतवज्जे ना हो, आप और आपका परवरदिगार जो है उसकी तवज्जो में आप करें। लेकिन नमाज की हैत में जो चीज़ें हुजूर ने मुकर्रर कर दी हैं वो हराम में उसी तरीके से हो। नवाफिल में पढ़ते हैं हाथ कुरान मजीद हाथ में लेके या सामने रख के, तो फर्ज नमाज नहीं पढ़ सकते इस तरह? पढ़ सकते हैं ना, अगर किसी को जरूरत महसूस करें आप, क्योंकि उसमें तो ज़्यादा कुरान अपने पढ़ना नहीं होता। बात असल में ये है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें जब लोग कहते हैं क्या कर सकते हैं, तो सवाल ये है कि अगर कोई दुनियावी काम नहीं आप कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़िए। रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इसमें किसी चीज़ को रोकना हो तो रोक दिया। जैसे मिसाल के तौर पर रुकू में आपने रोक दिया ना, आपने कहा यहाँ दुआ ना करो, रुकू दुआ करने की जगह है, सजदा दुआ करने की जगह है, कादा दुआ करने की जगह है, कीजिए आप दुआ। तो किसी चीज़ से रोका नहीं है, लेकिन दीन के आम उसूल के ऊपर इजाज़त होगी उसकी।